Thank you for coming on this panel. Thank you so much. Meanwhile, let's start the session then. Chinmayji would be joining. Okay, so I'll just introduce a little bit. So we have the second session of the day. The session is named the Kashmir Files, Experience Before and After. And we have three panelists over there. And I'll introduce all the three panelists to you. The first one is Mr. Atul Srivastava. He's a popular Bollywood actor, best known for his role as the overdramatic heart patient in the movie Munna Bhai MBBS. A star with an impeccable sense of comic timing, he has been part of many movies including Bajrangi Bhaijaan, Batti Gol, Meter Chalu, Lukka Chuppi, Yahan Sabhi Gyani Hai, Stree, Anna, Gulab Gang, Chal Bhag, Bharat, Bombay Velvet, Lage Raho Munna Bhai, and Toilet Ek Prem Katha. Born in Lucknow, Atulji has studied at the Bhartendu Natya Academy, BNA, Lucknow, and credits his acting abilities to the institute. Recently, he was seen as a journalist, Vishnu Ram, in a much acclaimed film, The Kashmir File, a series of interviews of the first generation victims of the genocide of Kashmiri Pandit community in 1990. Atul Srivastava ji is an actor who skillfully, effortlessly, but expertly knows how not to allow his demeanor to betray his feelings. Therefore, the filmmakers gave him funny characters to enact on the silver screen. In the year 2007, he made an appearance in the cinematic experience named Ek Chalis Ki Last Local that has humor, but it is also about sinful acts of the bad guy. With his impressive performances over the year, the actor has proved that he is indeed a powerhouse of tremendous talent. We welcome you again, Atul ji. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद. मेरे लिए इतने सारे शब्दों का चयन आपने बड़ा अच्छे से कर लिया और मुझे मतलब अच्छा लगा, लेकिन ईश्वर बस आपके इन शब्दों में मुझे अपनी कृपा बरसाए, बस ये मेरी यही विनती. थैंक यू सो मच. धन्यवाद. So now we'll introduce you to the next panelist. He is Mr. Chinmay Mandlekar. He is an Indian actor, writer, and stage director with an active presence in Marathi and Hindi films, Marathi theatre, as well as on Marathi television. He is a graduate of the National School of Drama and has consistently written, directed, and acted in many successful Marathi plays. He has also been active as a screenplay and scriptwriter for various daily soaps on Marathi television. Some of his prominent films as an actor include Tere Bin Laden, Farzan, Fateh Shikars, Zinda, Maurya, The Kashmir Files, and Pawan Khan. For his recent work in The Kashmir File, his work has received wide acclaim. Despite this being a very challenging role, he has managed to impress one and all. Apart from writing and acting, he has also been the co-producer of a couple of television shows. Mr. Chinmay, has he joined? Okay, so he'll be joining soon. I'll introduce you to the third panelist and who's also the moderator of the session. She is Ms. Roona Ashish Batuda. Ms. Roona has been associated with the world of journalism for the last 20 years. She has done TV news, reporting, news reading, anchoring, and news production. She started her career in 2000 when she completed her master's degree in journalism and mass media from Sri Devi Ahilya Vishwavidyalaya. Her first job was in Zee News. After that, she has worked in places such as Aaj Tak, TV9, News Nation, and Mumbai Mirror. Currently, she is working for the country's first Hindi news website, Web Dunia. She also has her own YouTube channel named Filmi Khichdi, and it has more than 80,000 subscribers. Apart from doing journalism, she also teaches journalism and is associated with Mitibai College, Hamara Institute for more than 10 years, where she is teaching news reading, reporting, and news production to postgraduate and undergraduate students. In addition to this, she is also an affiliated professor of TESS. Roona ji will probably be the first and only journalist in this country to have interviewed both President APJ Abdul Kalam and Prime Minister Narendra Modi. Her inclination towards defense beat was so much that after 18 years of covering entertainment, when she got an opportunity in Web Dunia to do defense journalism, she didn't miss this opportunity. Apart from this, Roona ji has been an NCC cadet who has won the President's Medal for state Madhya Pradesh and is also a certified Kathak dancer. We welcome you on board, Roona ji. स्वाति, thanks a lot. इतना सारा जनरली हम बोलते हैं, हम इंट्रोड्यूस करते हैं अपने बारे में. हम भी टीचर, हम भी बोलते हैं, बाकी नहीं छोड़ते हैं. And when students are there, then teachers in full form. Always.
So give me a second. I'll just confirm when he's joining, and then we'll start. Yes. Let's continue. He'll be joining in 10 minutes. He's removing his makeup and all, so he's preparing for the session. Okay, so you may start. Over to you, Anshi ji. चलिए, थैंक्स अ लॉट. फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड मॉर्निंग स्वाति मैम, आपका भी और आने वाले जितने भी लोगों ने ज्वाइन किया उन सभी का, और स्पेशली थैंक यू अतुल जी, इतना समय निकाल कर आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया है आपका. कश्मीर फाइल्स जब मैं देख रही थी तो मुझे याद है मैं सिनेमा हॉल में बैठी हुई थी. एक मौका कुछ ऐसा पड़ा कि मैं प्रेस जो मीट होता है या प्रेस में जो शो होता है वो नहीं देख पाई, और लोगों के बीच में मैंने बैठकर देखा है और सभी लोग स्तब्ध थे हर एक परफॉर्मेंस को देखते हुए. अतुल जी, इतनी बड़ी लहर लेकर आएगी ये फिल्म, आपने सोचा था कभी? नहीं, मैंने कभी नहीं सोचा था. लेकिन जिस वक्त ये फिल्म मैंने सुनी थी पल्लवी जी के मुंह से, और उन्होंने मुझे पढ़ के थोड़ा बताया, ब्रीफ दिया, तब ये लगा कि ये ज़रूरी है. ये तो मुझे लगा था, लेकिन उसका इतनी बड़ी लहर हो जाएगी, इतनी बड़ी क्रांति हो जाएगी, इनफैक्ट ये मैंने सोचा ही नहीं. बिल्कुल. आपसे ये जानना चाहेंगे अतुल जी, जब पहली बार आपके सामने ये शब्द रखे गए द कश्मीर फाइल्स और ये फिल्म है, कैसे ब्रीफ किया गया था? मुझे सबसे पहले तो एक होता है शॉर्ट ब्रीफ होता है जी. वो एक ये सब्जेक्ट है, ऐसा ऐसा हुआ था, जेनोसाइड हुआ था. मैंने हाँ वो तो हुआ था. तो क्योंकि उस वक्त मैं दिल्ली में था और कुछ लोग मुझसे मिले भी थे. मैं थिएटर वर्कशॉप में, मेरी कुछ लोग आए थे कश्मीर से, जो इन्होंने कुछ किस्से बताए थे, बहुत दिल दहला देने वाले थे. तो कुछ तो मैं जानता था, लेकिन वो सिलसिला कब तक कितना बड़ा चला था, ये बातें जैसे सबको पता है छुपा के रखी गई, मतलब या हम तक नहीं पहुंचाई गई, नहीं पहुंची, तो उसका मैं भी शिकार था. लेकिन जब मुझे ये बताया तो मैं तो मतलब मैंने वक्त नहीं लगाया इसको हाँ करने में. स्क्रिप्ट बाद में पढ़ी, पहले जो शॉर्ट ब्रीफ होता है ना वो मिला, उसके बाद स्क्रिप्ट मैंने पढ़ी, तो मुझे ना तो करना ही नहीं था, और रोल भी मेरा बहुत अच्छा था. क्या होता है कि सब्जेक्ट अच्छा है लेकिन आपका रोल बहुत अच्छा नहीं है, करने में तो फायदा नहीं है, तो भी मना किया जा सकता है. लेकिन रोल भी मेरा बहुत अच्छा था, तो मुझे मना करने का कोई मतलब ही नहीं था, और तुरंत हाँ कर दिया. अच्छा. अब जब ये फिल्म कल ही के जो आंकड़े आए हैं, ताज़ा आंकड़े आए हैं, 200 करोड़ अगर सिर्फ हम आंकड़ों की बात करते हैं तो इतना क्रॉस कर गई है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है. अब ऐसे में जब इस फिल्म को पीछे मुड़कर देखते हैं, पहला दिन दूसरा दिन शूट का, तब क्या सोचने में आता है, तब क्या दिल में आता है? अब मैं तो कुछ नहीं सोच सकता हूँ, लेकिन मैं प्रोड्यूसर और डायरेक्टर, खासकर डायरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्या सोचता है, ये मैं अगर बना रहा होता, फिल्म जुड़ा होता, तो मैं इस वक्त क्या सोच सकता. काश को ये उस वक्त इतना पैसा होता तो उसमें और हम लगा सकते थे, है ना. नॉर्मली क्या होता है कि जब आदमी लो बजट फिल्म होती, कम बजट होता है, तो बहुत ही सोच समझ के पैसा खर्च किया जाता है. कभी कभी इंसान कॉम्प्रोमाइज भी करता है, क्योंकि इसमें नहीं लगेगा आपको, किया भी नहीं गया है. तो लेकिन फिर भी एक ऐसा लगता है कि हमारे पास इतना पैसा होता तो ये फिल्म का जो ग्रैंडर है वो कहीं शायद डबल हो जाता. स्पेक्टिकल जिसको भव्यता बोलते हैं, इसकी भव्यता ओरिजिनलिटी ही है. स्पेशल कोई महल बना देना तो है नहीं, तो जो ओरिजिनलिटी है वो और ज्यादा दिखाने में और शायद सुविधा हो जाती. तो मैं तो ऐसा सोचता ही नहीं कि पिछला सोच के कि पहला दिन जो शूटिंग का था
ऐसा कुछ मेरे जहन में आता नहीं है। अब चाहे जितने पैसा कमा ले, ये तो बहुत अच्छी बात है। और ऐसे हमारे बीच में हमारे जो प्रोड्यूसर और डायरेक्टर हैं, वो लोग इस सब्जेक्ट पे, इस तरह के सब्जेक्ट पे वो आगे काम करें, उनका भला हो, ये हम चाहते हैं। क्योंकि वो जो भी सब्जेक्ट उठाते हैं वो इसी तरह का जो जिससे देशवासी शायद अनभिज्ञ हैं, उनको आधी बातें पता है, आधी नहीं पता। इससे पहले वाली फिल्म में भी ऐसा ही था। तो मैं चाहूँगा, मेरी पूरी दुआएं हैं और कि वो इस तरह की फिल्म बनाते रहें। बिल्कुल, ये फिल्म बहुत एक ऐसी कड़वी सच्चाई को लोगों के सामने लेकर आई, जैसा कि आपने कहा, हमें अनभिज्ञ या तो अनभिज्ञ रखा गया या वो चीज हमारे सामने आने ही नहीं दी गई है। कुछ इस तरीके से बातें लोगों के सामने भी आई है। जब ये रोल निभा रहे थे तो क्या आपको कोई अलग से होमवर्क जैसे कहा जाता है फिल्मी भाषा में, क्या कोई होमवर्क करना पड़ा? क्या कोई किताबें पढ़ने की जरूरत पड़ी या किसी से आपने बातचीत की हो? देखो, सबसे बड़ा हमारा जो कैरेक्टर को समझने के लिए, कैरेक्टराइजेशन को पूरा करने के लिए, कैरेक्टरिस्टिक्स को समझने के लिए सबसे बड़ी चीज होती है हमारा टेक्स्ट, हमारी स्क्रिप्ट। वही हमारा बाइबल कहा जाता है। और डायरेक्टर, और खासकर ये डायरेक्टर जो कि जिनको जहन में एक एक चीज है, जो कि, और सबसे बड़ी बात ये है कि वो रियल बेस्ड। मैं कुछ अपना नहीं बना सकता कि कुछ अपनी चीज इम्प्रोवाइज कर दूं, ऐसा नहीं हो सकता। ऑब्वियस है, मैं अतुल हूँ, ये मेरा शरीर, मेरा इंस्ट्रूमेंट है। उन करेक्टर्स को कुछ गड़बड़ हुआ क्या? आप हॉरिजॉन्टल कर लीजिए उसको प्लीज। मेरा तो था ही। हाँ जी, दिस इज फाइन। हाँ जी जी। तो मैंने वैसे ही, डायरेक्टर ने समझाया कैरेक्टर के बारे में, सर ऐसा 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 है। मैंने कहा ओके। फिर क्या है कि मेरा कैरेक्टर जो है कई कैरेक्टर्स को मिला के बना है। तो उसके मुतालिक जितने लोग थे उनके इंटरव्यूज देखे गए, क्या बातें की। जो सबसे बड़ी चीज थी कि मुझे कोई भाषा तो पकड़नी नहीं थी, डिक्शन कश्मीरी नहीं लेना था, क्योंकि दिख रहा है ये नॉर्थ इंडिया से है, जो वहाँ इनकी पोस्टिंग हो रखी है। तो वो एक चीज चली गई। लेकिन फिर भी बहुत काम होता है एक्टर को करने के लिए, जिसको बोलते हैं इनर डेवलपमेंट। जो इनर रिलेशनशिप का इनर तार जो होता है ना, वो बहुत जरूरी होता है। उन दोस्तों के प्रति क्या सोचना है, और फिर जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, आपको पता है कि वो कितना अंदर से तड़पता हुआ इंसान है। जो तड़पन है कि दोस्त के लिए कुछ कर भी नहीं पा रहा हूँ, वो जान रहा है कि जो कुछ कर रहा हूँ वो गलत है, लेकिन फिर भी जो मजबूरियां हैं जिसमें वो कर रहा है, गलत न्यूज दे रहा है, वो जानता है कि मैं गलत न्यूज दे रहा हूँ। तो दूसरी तरफ हमारे डायरेक्टर और राइटर ने जो कैरेक्टर बनाया, सिर्फ ग्रे शेड नहीं बनाया, उसको एक इमोशनल इंसान भी बनाया। तो दो तीन कैरेक्टर मिला के कैरेक्टर दिया, तो जिसमें बतौर एक्टर मुझे करने में इतना मजा आया, क्योंकि उतने ज्यादा ही चैलेंजेस थे। जो अंदर के कलर के स्ट्रोक्स थे, इमोशन के स्ट्रोक्स थे, उसको डिजाइन करने में, उसको करने में मुझे बहुत मजा आया। बहुत मेहनत करनी पड़ी, लेकिन ऊपर वाली दया से वो बहुत सही सटीक कैनवस पे उतर पाया। अतुल जी, ये फिल्म जब पहली बार आपने देखी पूरी के तौर पर, आपका पहला रिएक्शन क्या था? क्योंकि हर एक्टर को अपना अपना रोल निभाना होता है, लेकिन पूरी फिल्म का जो दारोमदार होता है वो निर्देशक पर रहता है। तो जब उनके साथ बैठ के या फिर सिर्फ एक्टर के साथ, अपने को एक्टर्स के साथ बैठकर ये फिल्म देखी? ये पहली बार मैंने देखी तो बहुत गिने चुने लोग थे, उनको बुलाया गया था, बहुत छोटा सा ऑडिटोरियम था। देखा जाए तो शायद विवेक जी ने भी बड़े स्क्रीन पे पहली बार देखी थी। उस दिन जब हमने साथ में देखी तो कुछ ही लोग थे, 10-15 लोग थे, मैं और मेरी पत्नी, और मैं वाकई में स्तब्ध रह गया। मैं देखिए, अभी भी कुछ हो रहा है मुझे, मैं समझ नहीं पा रहा था कि कैसे रिएक्ट करूं। रिएक्ट मतलब अंदर से रिएक्शन, हमारा शरीर तो कर ही रहा था रिएक्ट, जहनियत तो कर ही रही थी, दिमाग कर ही रहा था, लेकिन क्या कहूं, क्या बोलूं। होता है ना कि जब फिल्म खत्म होती है तो फिल्म बहुत अच्छी लगती है आपको, तो आप जल्दी से ताली बजा देते हैं, लेकिन इस फिल्म का रिएक्शन ये होना भी नहीं चाहिए था, और जो होना चाहिए था वही हुआ कि सब लोग खामोश थे। और जितना बीच बीच में लोगों की
जो गला रौंदता है ना, उसकी झटका लगता है, उसकी आवाजें, उसकी साउंड लोग कंट्रोल करते हैं ना कि मैं किसी को डिस्टर्ब ना करूं। जी। शायद लोगों का मन कर रहा होगा कि मैं फूट के रहूं, लेकिन वो रो नहीं पा रहे थे, चाहे वो विवेक ही क्यों ना हो। और हम सबके साथ वही हो रहा था कि कुछ कुछ होता जा रहा था, कंट्रोल करके हम लोग देख रहे थे। तो हमने अपने आप को बहने नहीं दिया बतौर ऑडियंस भी, लेकिन हम स्तब्ध थे। थोड़ी देर तक खामोशी छाई रही, और खामोशी छाने के बाद जब खामोशी टूटी तो हमारा ही मित्र, इसमें हमारे को एक्टर चिन्मय, आप वो बहुत ही फूट फूट कर रोने लगे। मैं दौड़ के गया, उनको थोड़ा मैंने कंसोल किया, और शायद हम भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। तो ऐसा कुछ माहौल बन गया था, सबने अपने आप को खामोश रखा। थोड़ी देर बाद, चाय के बाद, फिर हम लोगों ने एक दूसरे से बात करना शुरू की। तो ये रिएक्शन था फिल्म देखने के बाद। बहुत, मैं खुद सिनेमा हॉल में चूंकि बैठी थी, मैंने ये आवाजें सुनी है, भारत माता की जय, ये आवाजें सुनी है। जब ये शूट हो रहा था तो मतलब कैसा माहौल आपको मिला, क्योंकि ये बहुत डार्क एक जैसे बोलते हैं डार्कनेस लेकर आता है, तो ये आफ्टर इफेक्ट भी तो कुछ होता होगा सीन करने का। बिल्कुल होता है। और अभी क्या होता है कि जितनी इंटरव्यूज, लोगों से मिलना, विवेक जी और पल्लवी बहुत लोगों से मिले, 700 लोगों से इंटरव्यू किया, उन्होंने बातचीत करी, तो वो तो इस चीज़ों से गुजर ही चुके थे। तो उन्होंने कुछ हमें बताई, कुछ शूटिंग पे लोग बताते थे, कुछ खड़े हुए पीछे अंकल, उन्होंने अभी अगर वो कश्मीर से, उन्होंने मुझे कुछ बताया अपने एक्सपीरियंस। तो ऐसा हम सुनते सुनाते शूटिंग करते थे। तो एक शूटिंग बाकी और सब्जेक्ट की शूटिंग होती है, चाहे जितनी सीरियस फिल्म क्यों ना हो, लेकिन वो एक फैमिली ड्रामा होता है। ये एक देश से संबंधित है, ये हमारे किसी प्रांत से, हमारे लोगों से संबंधित है, और जिसमें इतना बड़ा संहार हुआ, नरसंहार हुआ, तो हम सब हिले हुए रहते थे। तो आमतौर से देखा गया है कि इमोशंस जो होते हैं बड़े, अगर ऐसा कोई सपोर्ट मिलता है ना, तो एक्टर को करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर कोई रोने का सीन है, आपने एक सीन देखा होगा जब अनुपम खेर जी का वो अस्थियां लेकर हम उनके घर में विसर्जित करते हैं, मतलब छिड़काव करते हैं, वो डालते हैं, जो उन्होंने चिट्ठी में लिख के दिया था कृष्णा को। तो वो ऐसा करने हम सब मित्र जाते हैं, और उसके बाद में ना सभी अंदर से वो करने के बाद में टूटे हुए थे कोई शायद। और अगर हमें कंट्रोल ना करना होता अपने अपने कैरेक्टर में, तो शायद सब फूट फूट के रो रहे हैं। क्योंकि सबकी कैरेक्टर डिजाइनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग होती है। कोई ऑफिसर है, वो अपने को किस तरह से कंट्रोल करता है, कोई आदमी की रोने का मन करता है, जैसे रियल लाइफ में मेरे साथ कुछ हादसा हुआ तो मैं शायद घर में सबके सामने ना रो के बाथरूम में चला जाता हूँ, रो के चला आता हूँ। सबका अपना अपना स्वभाव होता है। तो उसी तरह से उसमें मेरे कैरेक्टर में था कि मैं थोड़ी सी हिचकियां लेता हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ इसलिए नहीं कि मुझे ये सोच रहा हूँ कि वो चला गया, इसलिए कि मैं गुनाहगार कहीं ना कहीं महसूस कर रहा था। और मेरी जो टूटन थी उस कैरेक्टर की, विष्णु राम की, जो ब्यूरो चीफ था, वो यही थी कि काश मैं नहीं डरा होता, काश मैं मजबूरियों में नहीं फंसा होता। अब पता नहीं आप तक कितनी बातें पहुंची नहीं पहुंची, लेकिन ये सब लेयर्स थी जिसमें मैं एज एन एक्टर न्याय करने की कोशिश कर रहा था। जो कहते हैं ना, जब कैनवस में पेंटिंग बनाते हैं तो ये स्ट्रोक थोड़ा हल्का लगे तो अच्छा है इस कलर का, तो हमारा जो इस इमोशन का स्ट्रोक है ऐसा लगे, इसका ऐसा लगे, ऐसा एक सोच के चला था। लेकिन करते समय आदमी बह जाता है, तो हमें बहना नहीं था। तो लेकिन फिर भी बहने से बेहतर होता है कि ऑडियंस को, दर्शकों के दिल में तीर की तरह वो बात चुभे और उसके रोंगटे खड़े हो जाए और वो इमोशन उस तक पहुंच जाए। तो पता नहीं मैं सक्सेसफुल रहा कि नहीं रहा है। अरे अतुल जी, आपको ये सवाल नहीं पूछी क्योंकि आप सक्सेसफुल रहे हैं। बहुत सारे सीन्स ऐसे एक एक करके आपके याद आ जाते हैं। मुझे ये बताइए, आसपास वालों से, मित्रों से, नई जनरेशन से क्या आपको कोई रिएक्शंस मिले हैं? अद्भुत। मुझे पर फिल्म को लेके तो आपको पता ही है, जो चर्चा हो रही है वो तो हो रही है, लेकिन पर्सनली मुझे थैंक्स का वीडियो डालना पड़ा, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया में एक्टिव हूँ नहीं।
तो मैंने एक डाल दिया, तो उसमें तो बहुत लोगों ने बहुत तरह से, किसी ने कुछ कहा, किसी ने बड़ी बड़ी उपाधियां दे दी, किसी ने कहा कि पता नहीं आपके दिल में उतर जाते हैं, इस तरह की बात की, और किसी ने कहा कि यू आर हाईली अंडररेटेड एक्टर। ठीक है, मतलब जो जिसकी मन में आए, लेकिन कुल मिला के सब बहुत ज्यादा मुझे उस करेक्टर के थ्रू प्यार कर रहे हैं और सबने पसंद किया। तो जो मुझे अच्छा लग रहा है, क्योंकि एक एक्टर को और क्या चाहिए कि जो उसने मेहनत करी वो लोगों के दिल तक उतर जाए, बस। बिल्कुल। इतना हैवी वाला जब रोल कोई किया जाता है, इतने सारे लेयर्ड वाला जब रोल किया जाता है, मुझे बताइए थकावट होती है फिल्म खत्म होने के बाद? बिल्कुल होती है, बिल्कुल होती है। और इसका क्या होता है कि बीच में मुझे 1-2 दिन के लिए फीवर आ गया था, अंदर से तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन ये ऊपर वाले की कृपा है कि एक सभी एक्टरों के साथ मेरे ख्याल से होता है कि जब काम सामने आ जाता है ना, तो थोड़ी देर के लिए सब भूल जाते हैं। तो उसी तरह से वो जैसे ही शूटिंग खत्म होती थी तब लगता था अरे हाँ मेरी तो तबीयत खराब है। मेरा शरीर तब याद दिलाता था कि भाई तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं, थोड़ा संभालो। तो सेम शूटिंग में ऐसा हुआ कि जब खत्म हो गई तब हमारी थकान बहुत हुई, क्योंकि मेंटली हम रोज उसी तरह के सीन, या अगर उस तरह के सीन हम 3 दिन लगातार किए, तो अगर एक ब्रेक आया है तो लगता था कि ऐसा लग रहा हम पहाड़ चढ़ के आए हैं, इतनी थकान हो जाती थी। कि कभी कभी शारीरिक मेहनत से ज्यादा ये मानसिक जो तनाव ये कहें या उससे द्वारा की गई मेहनत है वो ज्यादा थका देती है। तो वही होता था हम लोग के साथ। तो बाहर कैसे निकलते थे, क्या कोई? हाँ, मतलब बाहर निकलना पड़ता था और निकल जाते थे, क्योंकि हम अपने आप को याद दिलाते थे कि ये एक्टिंग है, हमने एक्टिंग करी है। लेकिन हाँ, जो सच्चाई है वो जहन से कभी नहीं जाएगी, ना जाती थी और ना ताउम्र जाएगी। कि जो हुआ वो अभी भी है। मैं अगर करेक्टर नहीं हूँ इस समय, अभी भी मेरे जहन में, मेरे दिलो दिमाग में वो छाई हुई है। तो बस ये उसके रिएक्शंस ये हो रहे हैं कि काश के ऐसे लोगों का कुछ भला हो, उनके साथ न्याय हो। इन बातों को लेके एक ऊपर वाले से दुआ चलती रहती है। बिल्कुल। यहाँ पर स्वाति जी और इन सभी जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं उनसे जानना चाहूंगी, क्या आप अतुल जी से कुछ अलग से पूछना चाहेंगे? स्वाति मैम, Soons, you wish to ask something? Any question? Shivika, did you get some questions? अभिषेक देशपांडे जी ने आपको कॉम्प्लीमेंट दिया है अतुल जी, वो कहते हैं सर लव योर एक्टिंग। थैंक यू। Sumit, please ask your question. Please raise his hand. ओके जी। हेलो हेलो अतुल जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है। सर आपकी एक्टिंग बहुत बेहतरीन एक्टिंग थी। फिल्म देखते हुए मुझे एक रियलाइजेशन हो रहा था और वही सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्योंकि जो मुझे फिल्म देखते हुए हो रहा था, मुझे लगता है शायद आप एक्टिंग करते हुए भी शायद आप लोगों को भी ये हुआ होगा। तो मुझे एक अलग सा एक डर महसूस हो रहा था कि अगर मैं ये फिल्म देख रहा हूँ तो क्या मुझे लोग अलग नज़र से देखेंगे, या पता नहीं, अब मुझे लोग इस फिल्म देखने के लिए कुछ अलग तरीके से जज नहीं करेंगे। तो आपको भी कभी ऐसा डर लगा कि अरे ये डायलॉग मैं बोल रहा हूँ? मैं थोड़ा थोड़ा समझ तो रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा समझ रहा हूँ आप क्या कहना चाह रहे हैं, क्योंकि आप चीजों को थोड़ा छुपा के बोल रहे हैं। खुल के बोलिए तो खुल के समझूंगा, क्योंकि अब मुझे बड़ा समझा दीजिए, थोड़ा ना समझ हो गया। बस वैसा ही कि कोई ये बोल दे कि अरे तुम तो एक प्रोपेगेंडा को फॉलो तो नहीं कर रहे हो, या तुम इस डायरेक्शन में तो क्यों जा रहे हो। मतलब एक ऐसा डर कहीं मेरे करियर को, मतलब नहीं बिल्कुल सही कहा, ऐसे बहुत लोग होंगे। मैंने रूना जी की बात का जवाब दिया कि जब फिल्म, मैं आमतौर से जब फिल्म कहीं सुनता हूँ, कोई हमें बुलाता है, ऑफर देता है कि ये फिल्म आपको करनी है और ये सब्जेक्ट है, तो मैं सुनता हूँ
सुन के तुरंत बाद में मैनेजर को अपने जिम्मेदारी दे देता हूँ कि भाई बात करो थोड़ा फीस की, है ना, चीजें आगे बढ़ती हैं। फिर और बातें बढ़ती हैं कि ये नहीं ऐसा, ऐसा नहीं वैसा, मैं नहीं करूँगा, मेरे मजा नहीं आ रहा है मुझे, ये सब बातें बढ़ती जाती हैं। फिर कहीं जाके ये होता है कि चलो अच्छा कर लेते हैं। तो इस फिल्म में ऐसा कुछ नहीं हुआ। इस फिल्म में मैंने पढ़ा ही नहीं, सिर्फ सुना और हाँ कर दी। रोल सुना, सब्जेक्ट सुना, थोड़े सीन सुने, हाँ कर दी। स्क्रिप्ट मैंने बाद में पढ़ी। तो मुझे तो कुछ सोचना ही नहीं है कौन क्या सोच रहा है कौन नहीं सोच रहा है, कि मैंने कुछ सोच के हाँ करी ना, क्योंकि मैंने प्रोपेगेंडा ये सब सोचा ही नहीं ना, तो मुझे मालूम है ये हुआ था। कुछ पता तो बहुत पता लग गया, और वो भी प्रूफ के साथ। जब चीजें कोई झूठ लिखी गई हो, कोई झूठ पे फिल्म बन रही हो, तो समझ में आता है कि मैं डरूं कि भाई ये तो झूठ है, सच से क्यों डरूं? सच से करने की जरूरत नहीं है। वो मैंने भी किया, और मैंने आज भी मैं बहुत, मुझे प्राउड है कि मैं इस फिल्म का हिस्सा। बिल्कुल सही सर, ये फिल्म ने तो सबकी आंखें खोल दी है और मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं दोबारा देखने गया, एक्चुअली मैंने 2 बार, एक बार फैमिली के साथ देखी, एक बार मेरे फ्रेंड्स लोग के साथ देखी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आई हैव वन क्वेश्चन अतुल जी। ये जब हम इस तरह की मूवी करते हैं, जनरली हम कह रहे हैं एक्टर्स अलग अलग रोल में जाते हैं, अलग अलग भाव प्रस्तुत करते हैं और फिर निकल के वो दूसरे करते हैं, और यही एक्टर का काम है कि अपने रोल से ना जुड़ना है ना उसमें जाना है। पर इस तरह की जो मूवीज बनती हैं, जो एक मूवमेंट बन जाती हैं, एक चेंज लाती हैं, एक जागरूकता लाती हैं, जब एक्टर्स इन मूवीज से जुड़ते हैं और वो देखते हैं कि ऑडियंस उसमें एक अलग भाव से देख रही है, अलग तरीके से जुड़ गई है, और ये जो हम कहेंगे कि मूवमेंट में दोनों आपस में जुड़ के, तो क्या एक्टर की आगे एक्टिंग स्किल्स, भाव, उन सब में कुछ चेंजेस आते हैं कि वो अभी भी विमुख रहते हैं जैसे वो रहते थे? क्योंकि अगर विमुख नहीं रहेंगे तो काम कैसे करेंगे? पर जैसा आपने कहा आप उससे जुड़े, चिन्मय जी रोए थे, और मतलब ये कहीं ना कहीं जो जुड़ाव होता है, तो क्या ये आगे चेंज लाता है? नहीं, कभी कभी बहुत नुकसान हो जाता है कि जैसे मैं अभी नाम नहीं लेना चाहूंगा, मैंने एक सीरियल किया था। मैं बाय द वे आपको बता दूं, मैंने 110 सीरियल किए, जिसमें 90 सीरियल मेरे हिट, एकदम हिट सीरियल थे, जो लोगों की जुबान पे रहते थे। लेकिन सीरियल न्यूज़पेपर की तरह होते हैं और फिल्म में उपन्यास की तरह होते हैं, तो इसलिए बहुतों को याद नहीं रहते। तो एक सीरियल था जो मेरी मतलब मैं कॉमेडीज बहुत करता था, उसके बाद विलेन भी किए, ये भी किया वो भी किया, हर तरह के कैरेक्टर्स मुझे करने का मौका मिला। तो मैंने एक कैरेक्टर किया था, बड़ा सीरियस था। उसके बाद उसमें मैं, बिहार की थोड़ी सी एक्सेंट था उसमें, तो ऐसा मैं डूब गया था कि मुझे लगा कि मैं कहीं और किसी कैरेक्टर की बात कर रहा हूँ, तो उसमें भी वो टोन आई जा रही है, और थोड़ा मिलती जुलती अगर कैरेक्टरिस्टिक्स है उस फादर की। यहाँ भी फादर था, वहां भी किसी और का फादर हूँ, लेकिन कैरेक्टरिस्टिक्स थोड़ी थोड़ी सेम लग रही थी कि वो भी शरीफ आदमी है, वो भी ईमानदार है, तो सेम मेरी टोन आ रही थी, जो कि मेरी खसूसियत नहीं है। अतुल जो मैं हूँ, मेरी खास बात ही यही है कि मैं अलग करता हूँ, एक जैसा नहीं करता। मैं शायद इसीलिए जाना जाता हूँ, ये अलग करता हूँ। तो मैंने कहा ये तो गड़बड़ हो गया, मैं तो वैसा कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं निकलना मेरा बड़ा मुश्किल हुआ उस कैरेक्टर से। तो फिर मैंने फिर से कॉमेडी और इसमें चला गया, फिर कॉमेडी करके उसको भूला, फिर मैं इधर आया, ऐसा ऐसा करना पड़ा। तो इसमें क्या हुआ कि इस तरह के रोल करने में क्या कि कोई एक्सेंट या कोई ऐसी बॉडी लैंग्वेज आपकी नहीं बन जाती है, लेकिन हाँ आप अंदर से ना गंभीर हो जाते। अब जैसे मैं किसी रोल को करने गया, कोई कॉमेडी रोल है, अंदर कोई घटना हुई रास्ते में, तो थोड़ी देर मेरे उसकी एक लेयर चलेगी ही चलेगी। इंसान ही तो हूँ, मशीन तो नहीं हूँ। लेकिन चूंकि इतना एक्सपीरियंस होता है हम लोगों को, जो एक्सपीरियंस एक्टर उनको, कि वो मैकेनिकल भी करते हैं तो बिलीवेबल होता है। लेकिन हम मैकेनिकल करना नहीं चाहते,
रियल करना चाहते हैं तो रास्ते में जो घटना घटी है, किसी बच्चे पे कोई गाड़ी चढ़ गई, हमने उठा के अगर उसको हॉस्पिटल पहुंचाया है, तो इतनी जल्दी भूल नहीं जाएंगे। ठीक है, तो ये एक मशक्कत, एक लड़ाई अंदर की चलती रहती है, लेकिन आमतौर से एक्टरों की जीत होती है, क्योंकि हमारा ये प्रोफेशन है। अगर कोई किसी दूसरे में दूसरी लेयर दिख जाएगी ना, तो अच्छी बात नहीं है, तो वो हमारी हार होगी। तो हमें जीतना है तो उसे लड़ना है और जीत हासिल करनी है। और इससे क्या टाइप कास्ट होने का भी डर रहता है थोड़ा? जब इस तरह की बड़ी मूवी आ जाती है तो टाइप का मतलब इसी तरह के रोल मिलने लगेंगे, ऐसे ही भाव मिलने लगेंगे, तो क्या स्ट्रगल आता है? वो टाइप कास्ट वाली बात जो है ना, वो पहले बहुत होती थी, और ये डिपेंड करता है आप पे, मतलब एक्टर पे, कि जैसे मैं भी टाइप कास्ट हो सकता था, लेकिन उसके लिए मना करना पड़ता है, उसके लिए थोड़ा खाली बैठना पड़ता है, उसके लिए थोड़ा बिना पैसे के बैठना पड़ता है, जो मेरे साथ बहुत हुआ लाइफ में। मुझे नहीं करना है, एक जैसे 3 रोल है, क्यों करूं भाई? अभी ये किया, वो किया, अब नहीं करना है, सेम रोल क्यों करूं मैं? अब मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन एक सीरियल या कोई ऐसी सीरीज है जो पता लगा उसके 8 वो बन गए और 16 साल से चल रहा है, और सबने 6 मकान खरीद लिए उनके एक्टरों ने, है ना, और 10 गाड़ियां खरीद ली। सॉरी, मुझे नहीं चाहिए। क्यों? वो नौकरी ना कर लूं मैं? एक जन्म मिला है मुझे, और मैं अपने आप को वर्सेटाइल एक्टर बतौर महसूस करना चाहता हूँ, और वो लोग मेरे बारे में ये कहें, ये मेरी इच्छा रहती है, प्रबल इच्छा रहती है, तो मैं कैसे उसमें पड़ जाऊं? तो मैं तो नहीं चाहता कि एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर में दिखे, पूरी साइकी अलग करने की कोशिश करता हूँ, विद इन अ लाइन, विद इन अ ग्राफ, विद इन अ ब्लॉक। अतुल जी, मैंने आपकी बहुत सारी फिल्में देखी हैं। अभी आप जब बात कर रहे थे देखते याद आया, स्त्री में आपका काम जो था वो एकदम अलग था। थैंक यू। कोशिश करी। हाँ, वैसे ही लुका छिपी में, मतलब ऐसे कुछ कुछ जो बहुत ही पॉपुलर पिक्चरें हैं, टॉयलेट एक प्रेम कथा। अब देखिए, सब में मैं फादर हूँ। हाँ, लुका छुपी में भी फादर हूँ, उसमें भी हूँ, बत्ती गुल में भी फादर हूँ, और इस तरह से सब में है। कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी देखा जाए तो साइकी भी फादर की कोई ना कोई मिलती है, लेकिन फिर भी मैंने उसको पूरी बॉडी लाइन, बॉडी लैंग्वेज अलग करने की कोशिश की, जिसमें मेरी जीत हुई, है ना। चाहे वो बजरंगी भाईजान में एक डिफरेंट तरह का फादर है। फादर सब में फादर शब्द, यहाँ पर मैं फादर को फादर शब्द ले रहा हूँ, कि मैं एक तरह के फादर को प्ले नहीं कर रहा हूँ हर जगह। अतुल श्रीवास्तव फादर हो गए, अब वो ऐसे ही प्ले करेंगे। हो सकता है वो ज्यादा बिकाऊ हो जाए, हो सकता है मैं हर दूसरी फिल्म में नजर आऊं, लेकिन मुझे नहीं आना है, उस करेक्टर में नजर नहीं आना है। और अगर मुझे 100 फिल्में एक महीने में करनी पड़े, मैं करूंगा, लेकिन अलग अलग करूंगा, ये मेरी इच्छा है ना। ये मैंने आपका रेडियो इंटरव्यू भी सुना है कि विविध भारती के ऊपर आपका इंटरव्यू था। जी। और कार में आजकल ट्रेवल करते हैं ना, यहाँ तो ट्रैफिक जाम रहता है, तो बीच में ऐसे आते रहते हैं विविध भारती के कार्यक्रम। तो मैंने ये देखा कि आपने हमेशा अपने आप को एक अलग एक्टर की तरह स्थापित करने की कोशिश की है, उसको एक प्रोफेशन के बजाय उसको अपना जीवन बनाया है। मैं अब सच बताऊं तो इसमें कोई मेरी कोशिश है, और मैं कुछ इसको बड़ा मेडिटेटिव वे में लेता हूँ मैं एक्टिंग को। ये बड़ा मेडिटेशन वाली जॉब है मेरे लिए। अब एक थोड़ा सा उदाहरण दूंगा, है ना। अब ये थोड़ी सी अपनी तारीफ करूंगा, लेकिन वो तारीफ है पूरी की थी, हम सुनने को वो तारीफ है नहीं, वो एक फीलिंग है जो लोगों तक क्या प्रेषित होती है, ये मैं बताना चाहता हूँ। लुका छुपी के शूटिंग के वक्त हम लोग क्या है कि वो वहाँ पे फ्लाइट बड़ी, हफ्ते में 1-2 डायरेक्ट फ्लाइट होती थी, तो हम लोग क्या करते थे कि शताब्दी से आ जाते थे, तो उसमें हीरो हीरोइन सब लोग, अब जिनका फेस ज्यादा फेमस है वो लोग थोड़ा अपने को छुपा लेते थे। खैर, हम सब लोग बैठे थे, तो 2-3 सज्जन सामने से उठे, उन्होंने सबको पहचाना कि पीछे पूरी टीम बैठी है, सबके पास गए, सेल्फी खिंचाई, और मैं आगे बैठा था, वो मुझे क्रॉस कर दिया। वो मुझे क्रॉस करते हुए निकल गए पीछे, बाकी सारे एक्टर्स
जिसमें सभी लोग थे, पूरी टीम थी। सबसे उन्होंने सेल्फी खिंचा के वो जब वापस अपनी सीट पर जाने लगे, मुझे क्रॉस करने लगे, तो वो पलटे। पलटने के बाद उन्होंने क्या कहा और क्या एक्सप्रेशन उनके मैंने देखे, ये मैं आपको बता दूं। उन्होंने मुझे देखा और देखने के बाद उन दोनों की आंखों में, 2-3 लोग थे, आंसू थे। मुझे देख के उनकी आंखें भर आई थी और उन्होंने प्रणाम ऐसे झुक के किया जैसे मैं कोई जैसे राम भगवान का रोल कर रहा हूँ, और पैर नहीं छुए लेकिन लगभग वो नमन उतना ही किया और दिल से रोंधे गले से उन्होंने कहा, सर आप पता नहीं क्या है। क्या कहा उन्होंने? आप पता नहीं क्या है। ऐसे प्रणाम किया, सर एक फोटो खींचा आपके साथ, हमने आ रही। अब मुझे नहीं मालूम ये रिएक्शन क्यों आया, और उनके जब वो रिएक्शन आया तो मेरा भी गला भर गया। मैं भी दिल से एकदम पता नहीं क्यों हो गया ऐसा। तो जो मैंने बात कही मेडिटेटिव वाली, शायद ये बात उन तक पहुंच गई, और मैं ईश्वर का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि ये ही मैं पहुंचाना चाहता था, वो पहुंच गया। नहीं, भगवत गीता में सांख्य योग के बारे में जब दूसरे अध्याय में कृष्ण बोलते हैं ना, तो यही कहते हैं कि मेडिटेटिव स्टेट में किया हुआ जो काम है वही कर्म है, और वही बिना फल के भी आप करेंगे तो उससे पूरी संतुष्टि मिलेगी, वही स्वधर्म है। तो आपका भी जो इंटरव्यू जो मैंने सुना अभी, जो आप बता रहे हैं, वास्तव में आप भगवत गीता की कही हुई बात को अपने जीवन में जी रहे हैं, और वही बात आपके इवन कश्मीर फाइल की एक्टिंग में भी रिफ्लेक्ट होती है कि आप उस रोल को जी रहे हैं। मैं अभी राम गोपाल वर्मा का इसका क्रिटिक सुन रहा था, तो उसने कहा कि इस पिक्चर में कोई एक्टिंग नहीं कर रहा है, ऐसा लगता है कि ये घटनाएं हो रही हैं और वहां पर कैमरा रखा हुआ है। ये एक जो बात कही उसने, वो मुझको अभी भी लगता है कि ऐसा कैसे हो गया। बहुत अच्छी बात कही, और सच में जो मैंने भी पहले भी कहा कि इस फिल्म में ऐसा ही हुआ कि जैसे मेरी भी परिभाषा एक्टिंग को लेकर यही है कि एक्टिंग की ना जाए। जैसे ध्यान को लेके कहते हैं ना, जब वो घटना घट जाती है, जब एक्टिंग घटना शुरू हो जाए तो वही असली एक्टिंग है। जब की जाने लगे मैकेनिकल, तो एक्टिंग तो अच्छी हो जाएगी, परफॉर्मेंस हो जाएगी, वो अभिनय नहीं होगा, एक्टिंग नहीं होगी। एक्टिंग और परफॉर्मेंस में मैं अलग अलग करता हूँ दोनों को, वो कभी फुर्सत से बताई जाएगी बातें। थैंक यू सो मच। और बताइए, पूछिए जो पूछना। एक अभिषेक देशपांडे जी हैं, वो प्लीज अभिषेक अपना सवाल पूछें प्लीज। यस सर। सर जैसे हो जाऊं। हाँ सर, चले। सर जैसे आपने मतलब रिसर्च किया है आपके कैरेक्टर के ऊपर कश्मीर फाइल्स में, आपने बताया था, तो और कश्मीर फाइल्स में आपने मतलब जैसे है कि कम इन्फॉर्मेशन दिया गया है अभी भी फिलहाल, जितना बताया उससे मतलब जितना है उससे भी कम थोड़ा बहुत दिया गया है। तो आपको लगता है कि कश्मीर फाइल का पार्ट 2 होना चाहिए? ये सवाल डायरेक्टर और प्रोड्यूसर का है। नहीं, आपके हिसाब से या फिर जो आपने रिसर्च किया है आप जैसे? मुझे लगता नहीं है, क्योंकि अगर इसमें पार्ट बनेंगे ना तो पार्ट 2 तो नहीं कहूंगा मैं, इसमें कम से कम 2000 फिल्में बनेंगी और शायद 4 लाख बने। ओके। क्योंकि जो घटनाएं, जब आपने शायद न्यूज चैनल नहीं देखे, हर जगह कुछ ना कुछ कश्मीरी पंडित आके, और अभी तो सिर्फ कश्मीरी पंडितों की बात है, कश्मीर में तो बहुत घटनाएं हुई हैं, सिखों के साथ हुई हैं। हमारी एक कम्युनिटी जो पंजाब से आई थी, सफाई कर्मचारी वाली, उनके साथ हुई है। आप पढ़िए, आपको पता लगेगा। तो 4 लाख फिल्में बनेगी, तो 4 लाख तो कौन बनाएगा? मैं अगर न्याय करना चाहूँ तो 4 लाख बनाओ, वो बना नहीं सकता। तो इसलिए बात थी कि वो घटना घटी है, वो लोगों तक पहुंचे, वो पहुंची। और जैसा कि आपको भी पता है कि हर जगह 2 बातें होती हैं, तो वो 2 बातें ना हो, इसलिए हमारे डायरेक्टर और राइटर ने 4 साल रिसर्च करी, और हर सीन के पीछे प्रूफ है, सबूत है, ये घटना घटी और ये है, हमने ये शब्द बोले और इसका ये है, ताकि हमें कोई ब्लेम ना कर सके, एक्टर को भी ब्लेम ना कर सके, डायरेक्टर कोई कह ना सके झूठ है, आप प्रोपेगेंडा बना रहे, ऐसा कुछ नहीं। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो उसके लिए कितने जन्म लेने पड़ेंगे भाई?
ये विवेक अग्निहोत्री का एक इंटरव्यू में सुन रहा था, लल्लन टॉप जो है ना यूट्यूब के ऊपर बड़ा फेमस है, तो उसमें बोलते हैं कि इस फिल्म के डायलॉग लिखे नहीं गए हैं, जो लोगों ने कहा उसको मैंने वैसा ही रख दिया है। ऐसा है क्या? बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल ऐसा है। और काफी कुछ मैंने भी सुना और काफी इन लोगों ने इंटरव्यूज किए, वो बताया मुझे, और कुछ मैंने देखे भी हैं जो रिकॉर्डेड हैं, वो शायद आपको बहुत हिला देंगे, बहुत हिला देंगे। एक आदमी खुद बता रहा है कि मेरे साथ ये हुआ है। और जैसे अभी मैं चैनल देख रहा था, उसमें एक महिला थी, उन्होंने बताया कि मेरे मामा जी को बुलाया एक बच्चे ने, जो घर में आके हमारे घर में खाना खाता था। हाँ बेटा बोलो क्या बात है, और उसने गन यहाँ लगाई और वो भेजा उड़ा दिया। जब वो अपने मुंह से बता रहे थे, फिल्म में नहीं दिखाया, तो हालत खराब हो गई थी सुन के। ये अभी न्यूज चैनल में आ रहा था आज तक में, मैंने वहीं देखा, मुझे भी नहीं पता था कि। तो अभी इसने किससे निकल के आ रहे हैं, उसी में से एक महिला ने कहा था, जो मैंने अभी आपको एक जवाब दिया किसी को कि 4 लाख फिल्में बननी चाहिए, उन महिला ने कहा 4 लाख फिल्में बनेगी इसमें। थैंक यू। और बोलिए अतुल जी, यहाँ पर मैं एक और सवाल आपसे पूछना चाहूंगी। आप दो सवाल करिए। इतने सारे आयाम आपने देखे हैं एक्टिंग के, थिएटर भी देखा है, फिल्मों को बदलते हुए देखा है, कोई ऐसी फिल्म जिसने आपको झकझोर कर रखा है? क्योंकि आज की जनरेशन जो है वो कश्मीर फाइल को देखकर एकदम ऐसे सकते में आई है। आपको किसी फिल्म ने चेंज किया, इंस्पायर किया हो? हाँ, ये सवाल आपने एकदम से पूछा है। अच्छा। तो इसके लिए थोड़ा सा ना मुझे सोचना पड़ेगा, लेकिन ऐसी बहुत फिल्में होती हैं जी, जिसमें सामाजिक कोई दुर्घटना, कोई नरसंहार, ये जरूरी नहीं है कि वही आपकी पलट दे आपको, है ना, आपको झकझोर के रख दे। सिर्फ ऐसा ही नहीं, कभी कभी फैमिली ड्रामा में कुछ ऐसी बात हो जाती है कि वो आपको झकझोर देता है। कुछ सीख ऐसी, सामाजिक सीख ऐसी हो जाती है, खेल खेल में, कॉमेडी फिल्में भी ऐसी हो जाती है जो आपको लगता है हिला देता है। और मैं, अब ये बड़ी पर्सनल चीज़ है, जैसे मुझे मुन्ना भाई बहुत हिला दिया था। मुन्ना भाई जब आई थी, वो भी हिस्टोरिक फिल्म है, तो उसमें मैं हिस्सा था, पहली दूसरी दोनों में था। तो वो फिल्म हल्की फुल्की थी लेकिन बहुत भारी थी। तो उसने जो बात कही, वहां से भी मैं बहुत इम्प्रेस हुआ था। और तमाम ऐसी फिल्में हैं, किसी किसी में कोई कैरेक्टर होता है वो मुझे हिला के रख देता है। जैसे एक ऋषिकेश मुखर्जी डायरेक्टर थे, उनकी हर फिल्म मुझे हिला देती थी, जबकि वो सादी फिल्म होती थी, एकदम पारिवारिक फिल्म होती थी, तो वो भी मुझे हिला देती थी। तो डिपेंड करता है मैं किससे हिल जाता हूँ। हमारे साथ चिन्मय जी भी जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आई थिंक चिन्मय जी, आई थिंक ही इज ट्रैवलिंग एंड ये आवाज ट्रैवलिंग की आ रही है। हाँ जी, चिन्मय जी कैन यू हियर? आप आवाज आ रही है आपको चिन्मय जी? चिन्मय जी, अगर आपको आवाज आ रही है तो बताएं। चिन्मय जी, हेलो, नमस्ते 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 नमस्ते, कैसे हैं चिन्मय जी? आई थिंक इज नमस्ते चिन्मय जी, नमस्ते। ये देखो आप अभी गाड़ी सुन पा रहे हैं? हाँ, मैं जरा, क्योंकि जहाँ पर मैं था वहाँ बिल्कुल भी इंटरनेट वो कनेक्शन, सो आई केम आउट ऑफ द स्टूडियो। मैंने कहा ऐसी जगह पे ले चलो जहाँ इंटरनेट हो। तो आई थिंक नाउ दिस इज फाइन। आप सुन पा रहे हैं मुझे? पूरी अच्छी तरह जी, तो अब बात हो। आप आ गए, हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। चलिए, आपने नेटवर्क को भी धोखा दे दिया। आई एम सो सॉरी, आई गॉट लेट बिकॉज ऑफ द नेटवर्क। पुणे के आगे ये कहीं जगह है जहाँ पे हम शूटिंग कर रहे थे, नेटवर्क नहीं है यहाँ पर। अरे चिन्मय जी, हम अब यही अतुल जी से बात कर रहे थे। फिल्म करने के पहले भी और बाद में भी बहुत अंतर आता है। कितना अंतर आता है? इनफैक्ट थोड़े दिन पहले आपसे भी बातचीत हुई ही थी मेरी।
मैं आपसे चिन्मय जी जानना चाहूंगी, बड़े बड़े लोगों का रोल आप निभा रहे हैं, निभा चुके हैं, चाहे वो बात पवनखिंड की हो या फत्ते शिकस्त की हो। लोकमान्य जैसी फिल्म में आप दिखाई दी हैं, एक लोकमान्य, एक युग पुरुष, और वसंत राव नाइक, इतने बड़े बड़े किरदार जब आप निभाते हैं और जिसे बहुत प्यार भी मिला है, इज्जत भी मिली है, और फिर एकदम 180 डिग्री या 360 डिग्री का टर्न, एक ऐसा शख्स जो डरा कर रख देता है, मतलब घृणा का विषय बन जाए, और ये वर्ड मैं आपके लिए यूज करूं तो शायद वो भी छोटा होगा। ये बहुत बड़ा यू टर्न है या 360 डिग्री टर्न है, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल, प्लीज कॉल इट, बट हाउ डू यू मैनेज दैट मेंटल स्ट्रेस, दैट मेंटल जंपिंग फ्रॉम वन प्लेस और वन रोल टू अदर रोल एज एक्टर? I look at it as a wonderful opportunity. किसी भी अभिनेता के लिए ये बहुत ही गर्व की बात हो सकती है कि उसे अलग अलग शेड्स के और अलग अलग तरह के रोल्स करने को मिल रहे हैं, और मैं अपने आप को बहुत ही खुशकिस्मत समझता हूँ कि आपने अभी जो जो नाम लिए वो एक तरह से हीरोज हैं अपने अपने समय के, अपने अपने परिवेश के, लेकिन जो फारूक मलिक बिट्टा का किरदार मैंने कश्मीर फाइल्स में प्ले किया है वो हर तरह से विलन है। तो ऐसा किरदार अदा करने का मौका मिलना, ये एक अभिनेता के तौर पर बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ा मेरे ख्याल से इससे ज्यादा एक अभिनेता का कोई और सपना नहीं हो सकता कि उसके पिछले रोल से उसका आने वाला रोल इतना, जो आप कह रहे हैं कि 360 डिग्रीज अलग हो, ये तो किसी भी अभिनेता। चिन्मय जी, एट द सेम टाइम जब ये फिल्म आपके सामने आई थी, मैंने ये सवाल अतुल जी से भी जानने की कोशिश की थी, आपसे भी जानना चाहती हूँ, आपका पहला रिएक्शन क्या था? और जब पहला दिन आप सेट पर गए थे, क्या कोई दिमाग में हलचल थी? क्या कहीं कोई ज़हनी आपको उतार चढ़ाव का फेस करना पड़ रहा था? हेलो जी जी चिन्मय जी। हाँ, आप चिन्मय जी, we can hear you. If you don't mind, can you please ask the question once more? Certainly, certainly. Chinnmay ji, when you heard the script, yeah. अच्छा, शब्द नहीं पहुंचे होंगे. When you heard the script for the first time, what was the reaction? Because this was something which we possibly knew, but we were not aware completely. What was the first reaction? At the same time, जब आप set कर, जी कंटिन्यू, मैं बाद में पूछ लूंगी नेक्स्ट सवाल। नहीं, आप प्लीज सवाल कंप्लीट कीजिए, सॉरी। जी, और जब सेट पर पहुंचे तब क्या आपके ज़हन में कहीं कोई उथल-पुथल मची हुई थी? क्योंकि ये जो रोल है ये बहुत हार्डकोर ऐसे शख्स का रोल निभाया है जिसे पसंद तो किसी हालत में नहीं किया जा सकता। पहली बार जब स्क्रिप्ट सुना तब, अब लोगों का फिल्म देखने के बाद जो रिएक्शन होता है, जिस तरह का शॉक लोग महसूस करते हैं, सिनेमा घरों में हम देख रहे हैं कि फिल्म खत्म होने के बाद लोग अपनी सीट से उठना तक भूल जाते हैं। लगभग यही रिएक्शन मेरा स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद हुआ था, और सबसे पहला सवाल जो जहन में आया था कि वाकई क्या ये सब हुआ है? एंड आई आस्क्ड दिस क्वेश्चन टू मिस्टर विवेक अग्निहोत्री एंड ही सेड कि जो हुआ है वो इससे भी ज्यादा बदतर है। हम चूंकि हम फिल्म कर रहे हैं, हम कुछ चीजें ऑडियंस को ध्यान में रखते हुए कुछ चीजें हमें शायद हम पूरी तरह से ना दिखा पाए, बट जो सच्चाई का एक अंश हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। सो माय फर्स्ट रिएक्शन वाज शॉक, क्योंकि भारत में हम रह रहे हैं, मैं अब 40 साल के ऊपर मेरी उम्र हो चुकी है। एक मोटा तौर पे पता था कि कश्मीर में कुछ तो प्रॉब्लम हुई थी 1990 के दशक में, तब मैं छोटा था, 11 साल का था, लेकिन उसकी जो ग्रेविटी है, उसका जो असर है वो इतना गहरा है, वो घाव इतना गहरा है, ये मुझे भी वेरी ऑनेस्टली ये फिल्म करने से पहले पता नहीं था। और जहां तक बात है झिझक की या किसी भी तरह के
की दुविधा की, तो मेरे मन में ऐसी कोई भी दुविधा नहीं थी, क्योंकि आई रेड द एंटायर स्क्रिप्ट एंड व्हेन आई रेड द एंटायर स्क्रिप्ट मुझे ये बात जरूर पता चली कि जो बात कही जा रही है वो कहनी बहुत जरूरी है। अब उसके कहने में मुझे बुरा बनना पड़ रहा है, अब वो किरदार जो है वो बुराई को दर्शाता है, तो उसे उसी बुराई के साथ दिखाना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर वो बुराई सामने नहीं आएगी तो फिर लोगों के प्रति जो करुणा हम महसूस करते हैं वो करुणा हम उस शिद्दत के साथ शायद महसूस ना कर पाए। तो उस तरह का कोई भी दुविधा मेरे मन में नहीं थी, और वो वीडियोस अवेलेबल थे, वीडियोस देखे हुए थे, तो जिन लोगों ने अत्याचार किए हैं उनका जो ठंडापन है, उनकी जो सोल मर चुकी है, वो तो हमने खुद अपनी आंखों से देखी उन वीडियोस में। तो फिर उसके बाद कोई दुविधा आने का कोई चांस ही नहीं था। जब इतना डार्क रोल प्ले करते हैं, जैसे कि अतुल जी ने बताया कि एक इनर तैयारी भी करनी पड़ती है आपको। जी। मैं तो जर्नलिस्ट हूँ, आप ज्यादा शायद अतुल जी सही वर्ड उनसे मैंने सीखा है, इनर स्ट्रेंथ या इनर डेवलपमेंट। सो ये जो इंटरनल आपका डेवलपमेंट हुआ था किसी भी एक रोल को लेकर, उसमें आपने किन किन बातों का ध्यान रखा था? क्या आंखों के एक्सप्रेशन या हाथ ऐसा ही रखेंगे? मतलब मुझे नहीं मालूम, मैं तो जर्नलिस्ट हूँ भाई। एक बात बिल्कुल तय थी बहुत शुरू से, और जो बात मैंने विवेक जी से भी शेयर की एंड ही अग्रीड अपॉन इट, कि वी विल नॉट डू मिमिक्री। हम किसी भी जो रियल लाइफ लोग हैं उनको उनकी मिमिक्री नहीं करेंगे। तो वो जो मानसिकता है वो पहुंचाना बहुत जरूरी है लोगों तक। जो आदमी ये कहता है कि मैं अपनी माँ को मार दूंगा, मैं अपने भाई को मार दूंगा, उसी ठंडेपन से वो क्या सोचता होगा अपने दिमाग में या दिल में, अगर दिल है उसके पास, तो वो मानसिकता पहुंचाना बहुत जरूरी था। तो वो जो इनर तैयारी होती है कि ये आदमी, मतलब इसके अंदर क्या चलता होगा, ये जब अकेला रात को सोता होगा तो ये क्या सोचता होगा, ये थोड़ा बहुत आई ट्राइड टू वर्क अपॉन इट। और फिर अब जो दिखा है पर्दे पर वो विवेक जी की जो स्क्रिप्ट की स्ट्रेंथ है वो, और उन्होंने जो एज अ डायरेक्टर हमें जो गाइड किया, बस वही दिखा है पर्दे पर। चिन्मय जी, मैंने बात भाषा से भी की थी, जो शारदा पंडित का रोल निभाती हैं। उन्होंने कहा आप तो मित्रवत रहे हैं, आप सीनियर रहे हैं, तो हमेशा एक वो दोस्ती वाला हाथ और एक केयरिंग वाला नेचर रहा है, लेकिन जब आपके साथ वो रोल कर रही थी तो उन्हें ना आप पर बहुत गुस्सा आने लग गया था और आपसे डरने लग गई थी। कैसे थे वो दोनों वो सीन निभाना, खास तौर पर से चावल वाला और दूसरा जो एंड के क्लाइमैक्स। मैं पूरा नहीं बोलना चाह रही, वो थोड़ा ज्यादा ही भयावह है। कैसा था आप दोनों के बीच की एक्शन रिएक्शन वाली वो बात? क्योंकि जितना मुझे मालूम है, एक्टिंग इज ऑल अबाउट एक्शन एंड रिएक्शन। यस, डेफिनेटली। एंड भाषा इस फिल्म में मेरी टीचर रह चुकी है, क्योंकि ये जो भी मैं कश्मीरी एक्सेंट पिकअप कर पाया हूँ, या जो भी कश्मीरी मैंने थोड़ी बहुत 2-3 सेंटेंसेस मैंने कश्मीरी में बोले हैं, वो केवल भाषा की वजह से मैं बोल पाया हूँ, क्योंकि शी हैज बीन द टीचर एंड शी हरसेल्फ इज अ कश्मीरी, सो उन्होंने वो सिखाई है। तो वी डेवलप्ड अ वेरी गुड रैपो ड्यूरिंग द शूट। लेकिन जब क्लाइमैक्स का शूट था, पता था हमें क्या करना है, कैसे करना है। दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि जिस लोकेशन पे शूट कर रहे थे वो काफी ओपन था, तो काफी भीड़ जमा थी वहां पे। लगभग एक, जैसे आप कह सकते कि पूरा गांव उमड़ पड़ा था, क्योंकि अनुपम जी थे तो उनको देखने के लिए तो लोग आए थे वहां पे, और छतों पे पेड़ों पे चढ़ के देख रहे थे। अब ऐसे माहौल में वो स्ट्रिपिंग का सीन करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था हमारे लिए, बट फुल मार्क्स टू पल्लवी जी एंड विवेक जी, दे मेड इट सो कंफर्टेबल फॉर अस। एंड मैं और भाषा लगातार उस दिन एक दूसरे से बात कर रहे थे। मैं खास तौर पे उसे ये कह रहा था कि देखो भाषा, चाहे जो भी हो जाए, एज अ को एक्टर आपकी जो डिग्निटी है एक पर्सन के तौर पे, एक वुमन के तौर पे, उसको मैं कहीं भी ठेस नहीं पहुंचने दूंगा। क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि उस सीन की कोई रिहर्सल नहीं थी। देयर वाज नो रिहर्सल, देयर वाज नो स्कोप फॉर रिहर्सल। आपको बस एक मोटा मोटा जो मार्किंग होता है टेक्निकल कैमरा का, यहाँ जाना है, यहाँ आना है, आपको इधर खड़े होके ये बोलना है, बस। इसके अलावा कुछ कोई रिहर्सल नहीं थी। तो जो था वो वही होना था। सो आई वाज जस्ट, मैंने बस यही सोचा था कि अपना, वो कहते हैं ना कि बह गया इमोशन में या अभिनय में, वो इतना घुस गया कि ख्याल नहीं रहा कि कर क्या रहा है। फाइनली इट इज एक्टिंग, इट हैज टू लुक रियल बट इट इज एक्टिंग। सो दैट केयर आई वाज टेकिंग। और कहीं दूसरी तरफ ये भी दिमाग में था कि जो कर रहे हैं वो झूठ नहीं लगना चाहिए, ऐसे नहीं लगना चाहिए कि ये बना बनाया है।
तो आई थिंक वी सक्सीडेड इन दैट बिकॉज वी जस्ट केप्ट ऑन टॉकिंग टू ईच अदर थ्रू आउट द डे। और जब शूटिंग खत्म हुई तो चुप हो गए थे, पूरा यूनिट ही चुप था उस दिन। मतलब जो नॉर्मली एक पैकअप के बाद माहौल होता है, सब खुश होते हैं, चलो अब कहाँ खाने जाना है, क्या करना है, उस दिन वो कोई चर्चा नहीं थी। पैकअप के बाद चुपचाप हमने अपना समेटा और हम लोग निकल गए। तो दैट डिग्निटी, दैट ग्रेविटी वाज देयर इन द एंटायर यूनिट। बिल्कुल। एक समय था जिसमें बोलते थे कि एक जनरेशन ने अपने बच्चे का नाम ना तो प्रेम रखा ना प्राण रखा, क्योंकि वो विलन को रिप्रेजेंट करता हुआ नाम हो गया था। आपको कहीं किसी गुस्से का सामना तो नहीं करना पड़ा? किसी ने आपको आके डांटा तो नहीं? नहीं, काफी लोगों ने डांटा है जी, क्यों नहीं डांटा। मतलब दोस्त, जान पहचान वाले, काफी लोगों ने ये कहा है कि गुस्सा बहुत आया मुझे। एक हमारी पहचान की आंटी है, उन्होंने कहा कि अगर ये नाटक होता और तुम सामने स्टेज पे होते तो तुम्हें स्टेज पे आके तमाचा मार देते हैं। तो और मुझे एक पता चली ये घटना, मुझे आई डोंट नो, समवन टोल्ड दिस टू मी कि किसी थिएटर में एक महिला ने चप्पल फेंक के मार दी जब मैं पर्दे पर था। सो अगर वो चप्पल मिल जाती तो सजा के रख देता घर पे मैं, because that is the biggest compliment one can get. क्या बात, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मैं बीच में बोलना चाहूंगा। यस सर। कि चिन्मय, अभी जो चिन्मय के आने से पहले जो मैं आपसे बातें कर रहा था बातें, ये उसी में से एक एक्टर हैं कि इनकी घटना घटती है, ये एक्टिंग करते नहीं है। बहुत गजब है इनकी जो इनर अपने की स्कूलिंग है ना, कि मैं कुछ लोगों को बहुत पसंद करता हूँ और अब इनको बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ। गजब है। थैंक यू अतुल सर। और इस तारीफ के साथ मैं इजाजत चाहूंगा, क्योंकि मुझे तो कहीं जाना था, माफी चाहूंगा, है ना। चलता हूँ। चिन्मय, आप ऐसे ही, मैं सारी फिल्में देखूंगा, सारी मराठी सब देखूंगा। गजब। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सबको धन्यवाद, नमस्कार, स्वाति। थैंक यू अतुल जी, थैंक यू फॉर ऑनरिंग आवर प्लेटफॉर्म विद योर प्रेजेंस। थैंक यू सो मच। प्रणाम प्रणाम। कंटिन्यू। जी हम बिल्कुल चिन्मय जी, हम कुछ सवाल लेना चाहेंगे। जी अभिजीत जगताप जी पूछना चाह रहे थे, काफी समय से आपसे सवाल पूछना चाह रहे हैं। पूछिए अभिजीत, पूछिए। नमस्कार सर। नमस्कार। I want to ask that playing continuous positive character in Pawan King, Fishikast, and in Kashmiri Files, you have played the most hated role of Bitta. Yeah. And at the same time, you have played the most lovable and historic character of Chhatrapati Shivaji Maharaj. So I want to ask you that how people around you reacting on it, and how you take it, which challenges have you faced? आणि आता दिग्पाल सरांसोबतच तुमचे काहीतरी बरेच नवीन चित्रपट येणार आहे, जसे की शेर शिवराज वगैरे, त्याच्या आता सध्या शूटिंग वगैरे चालू आहे, तर याकडे तुम्ही कसं बघता? See, very surprisingly, मुझे कहीं पर ये आफ्टर शूटिंग फॉर कश्मीर फाइल्स मुझे ऐसे लगा था कि शायद स्पेशली जो मराठी जानने वाले लोग हैं उनको ये शायद पसंद ना आए, क्योंकि मराठी में हमारी ये शिवराज अष्टक नाम की एक सीरीज है जो हम 8 फिल्में छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर बना रहे हैं, जिसमें मैं छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमिका अदा करता हूँ। लेकिन जिस तरह का रिस्पॉन्स लोगों ने दिया है उससे ये पता चलता है कि आपका जो ऑडियंस है वो बहुत सजग है। People have made posts on stories on Instagram जहाँ पे एक तरफ महाराज की फोटो है, मतलब मेरी फोटो है एज छत्रपति शिवाजी महाराज, दूसरी तरफ मेरी फोटो एज बिट्टा, एंड दे हैव कॉम्प्लीमेंटेड ऑन बोथ ऑफ देम। मुझे याद नहीं कि मुझे इस तरह का कोई नेगेटिव रिएक्शन आया है। यू नो, पीपल हैव लव्ड इट एंड दे हैव लव्ड इट, क्योंकि उनको ये समझ में आ रहा है कि ये अभिनेता है और ये अभिनय कर रहा है दोनों में, और दोनों जो फिल्में हैं, चाहे वो पावनखिंड हो या वो द कश्मीर फाइल्स हो, वो दोनों फिल्में हमारा ऐसा इतिहास बता रही है जो बताना बहुत जरूरी है। तो इसमें ये एक अभिनेता एक भाग है, ये बात समहाउ ऑडियंसेस तक पहुंच गई है, इसलिए आज तक भगवान की दया से कोई भी नेगेटिव रिएक्शन मुझे नहीं आया। नक्कीच सर, आणि आणखी अशा हिस्टॉरिकल पिक्चर मध्ये तुम्हाला आम्हाला बघायला नक्कीच आवडेल। थैंक यू अभिजीत, थैंक यू सो मच, थैंक यू। दैट्स रियली नाइस। ये सवाल आपके सामने आए। चलिए मैं आपसे जानना चाहती हूँ, छत्रपति शिवाजी महाराज जब ये रोल आप निभाते हैं तो क्या इससे कुछ आपने अपने पर्सनल लाइफ में सीखा, क्या कोई प्रभाव पड़ा, या फिर कुछ बताने के लिए आपको एक नया ज्ञान मिला? नहीं, बहुत, मतलब शिव चरित्र एक ऐसी चीज है जो
जिसकी गहराई और ऊंचाई आप नहीं नाप सकते। जब हम 4th स्टैंडर्ड में स्कूल में थे तब से हम छत्रपति शिवाजी महाराज का इतिहास पढ़ रहे हैं। पहले वो पढ़ाई के तौर पे पढ़ा क्योंकि मार्क्स चाहिए थे, लेकिन घर में काफी माहौल था तो चीजें पता चलती गई। लेकिन जब मैंने दिक्पाल जी के साथ ये फिल्में करना शुरू किया तब आई वेंट इनटू क्वाइट डेप्थ। और इतिहास एक ऐसी चीज होती है ना, साइंस की तरह इतिहास में भी नई नई खोजें होती रहती है हमेशा। हाँ। तो कुछ चीजें अभी पता चल रही हैं धीरे धीरे। सो यू आर जस्ट अमेज्ड एट व्हाट दिस ग्रेट मैन अचीव्ड इन सच अ शॉर्ट स्पैन ऑफ लाइफ। बहुत ज्यादा उम्र नहीं है छत्रपति शिवाजी महाराज की। तो पर्सनल लाइफ पे प्रभाव इतना ही है उसका कि आपको आपका विजन हमेशा बड़ा रखना है, और वो जो अंदर का फायर है उसको आपको बुझने नहीं देना है कभी। मतलब आई लुक अपॉन हिम इवन बिफोर डूइंग दीज फिल्म्स, आई हैव ऑलवेज लुक्ड अपॉन हिम एज एन इंस्पिरेशन। जब भी आप बहुत सारी प्रॉब्लम से घिर जाते हो तब ये सोचना हमेशा लाजमी होता है कि अगर आज छत्रपति होते तो वो क्या सिखाते, वो क्या बताते। तो अगर इस तरह की सोच आप लागू करो तो योर लाइफ कैन चेंज फॉर बेटर। दैट इज व्हाट आई थिंक। बिल्कुल। वी वर इन फैक्ट possibly you were not here that time. That time we asked Atul ji, what was the after effect of the Kashmir files? Maybe the first day or the second day, once you had that pack of word. What was your after effect? See, very honestly, मुझे याद है गुरुवार, शुक्रवार को फिल्म रिलीज हुई, उसके पहले का जो गुरुवार था जी, उस दिन एक कास्ट एंड क्रू का शो तौर पे रखा हुआ था। तो मैं वहां पहुंचा, पल्लवी जी मुझे मिली, एंड किसी ने केस किया हुआ था। तो हमारे शोज काफी देर से खुले थे, वो बुक माई शो पे भी दिख नहीं रहे थे उस दिन, वो धीरे धीरे दिखना शुरू हो गए थे गुरुवार को। और मैं और पल्लवी मैम एक दूसरे को वो दिखा रहे थे, कह रहे देखो ये यहाँ पे शो खुल गया, यहाँ पे शो खुल गया। ऐसे एक एक इक्का दुक्का शोज हम गिन रहे थे, यू नो, कि अब धीरे धीरे हमारे शोज बढ़ रहे हैं। एंड आई वाज अंडर द इम्प्रेशन कि फिल्म आएगी, लोग थोड़ा देखेंगे, फिर शायद वर्ड ऑफ माउथ से सेकेंड वीक में थोड़ा और ज्यादा लोग देखेंगे, और फिर धीरे धीरे यू नो ऑडियंसेस विल कम इन। लेकिन जब शुक्रवार आया, अचानक से जो सैलाब आ गया हमारी लाइफ में, that was really, I had not imagined this. I'll be very honest, मैंने ये इमेजिन नहीं किया था कि इस तरह की सफलता मिलेगी। मैंने ये जरूर सोचा था कि लोग देखेंगे, लोग सराहेंगे रोल को, लोग फिल्म को सराहेंगे, लेकिन जिस तरह की चर्चा छिड़ गई, एक नेशनल लेवल का विषय बन गया, वो मैंने सोचा नहीं था। और जिस तरह का कमर्शियल सक्सेस भी ये बन गया, मेरे लिए लाइफ चेंज जरूर हुई है, क्योंकि लॉट ऑफ पीपल हैव कॉल्ड, नोन पीपल, अननोन पीपल। पहले महाराष्ट्र में लोग मुझे जानते थे, अब महाराष्ट्र के बाहर से बहुत सारे कॉल्स आते हैं, भारत के बाहर से बहुत सारे कॉल्स आते हैं। सो ये सारी चीजें बतौर अभिनेता आपको बहुत दिलासा देती है, आपको आपका ढाढ़स बढ़ाती है काफी। सो दैट हैज रियली चेंज्ड, एंड यस, देयर इज अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अब आगे जो करना है वो या तो इससे बेहतर करना है या इसे मैच करने वाला करना है, इसके नीचे कुछ नहीं करना है। अरे बाप रे, बड़ी जिम्मेदारी, निर्देशकों पर भी, आप पर भी। जी। आज से 10 साल बाद जब इस फिल्म को देखेंगे तो क्या 3 चीजें ऐसी होंगी जो आप हमेशा याद रखना चाहेंगे? सबसे पहली बात कि किसी ने पहली बार ये बात कही, एंड आई विल बी ऑलवेज प्राउड ऑफ द फैक्ट that I was a very small part of the film that said this for the first time, कि हमने ये कहा। मैं गर्व के साथ बता पाऊंगा कि जो बात कही गई उसमें मैं भी था। So that is the biggest takeaway for me. बतौर परफॉर्मेंस अगर मैं कहूँ तो अनुपम जी का जो डेथ सीन है, जो काफी लोगों ने उसकी सराहना की है, and I am one of them. It will keep on haunting me for all my life, the way he has done that scene. And भाषा जो एंड का सीन है, उसमें जो भाषा की चुप्पी है पूरे सीन में, that will always keep on haunting me, and I'll always remember whenever I will think of Kashmir Files, I will first think of these 2 things. उफ, अरे बाप रे। जब पहली बार आपने इसकी पूरी स्क्रीनिंग देखी, पूरे अपने दोस्तों के साथ, को एक्टर्स के साथ, मैंने सुना आप बहुत भावुक हो गए थे। क्या उस पल को डिस्क्राइब करना चाहेंगे? जी, मतलब भावुक
जैसे मैंने कहा ना कि आप जब शूटिंग करते हो तब आप अपना पार्ट करते हो, हाँ जी, तो दूसरे क्या कर रहे, जैसे ये जो सीन्स अभी मैंने कहे, अब जो अनुपम जी का सीन है वो तो मैंने देखा नहीं था पहले, आई जस्ट रेड इट इन द स्क्रिप्ट, बट वो मैंने देखा नहीं था, तो पहली बार ये सब देखने के बाद मेरे लिए इट वाज वेरी ऑ इंस्पायरिंग। और ऐसा लगा कि यार फिल्म में मिथुन दा भी है, फिल्म में अनुपम जी है, इतने सारे लोग हैं और उसमें मैं भी हूँ, एंड इट फेल्ट रियली ग्रेट, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट। एंड जो ओवरऑल इम्पैक्ट है फिल्म का, हमने सीन शूट किया था, वो जो क्लाइमैक्स है, तब पता था कि हम आज कुछ बहुत ही गंभीर चीज शूट करके आए हैं, लेकिन जब देखा उसको फिल्म में, पूरे फिल्म के कंटेक्स्ट में जब देखा, पूरी एक 2.5-3 घंटे की फिल्म खत्म होने के बाद जब वो सीन आता है और तब जब वो सीन देखा, तब उसका इम्पैक्ट और भी बहुत ज्यादा गहरा था मेरे ऊपर, एंड दैट इज व्हाट मेड मी मोर इमोशनल। कंप्लीटली अंडरस्टैंड। शिवानी जी यहाँ पर आपसे पूछना चाहता, आपसे कुछ कहना चाहती। शिवानी जी, अगर आप खुद अपनी आवाज में पूछेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। जी, शिवानी लोकरे। Hi sir, I'm a big fan and I really want to congratulate you on your acting. It was really amazing. थैंक यू मैम, थैंक यू। आप कुछ पूछना चाहती हैं? No ma'am, no. ओके, कुछ और है जो आपके फैंस तो बड़े दिख रहे हैं चिन्मय जी, मतलब आप आते हैं सामने और एकदम चुप्पी छा गई है, ऐसा हो गया आपके फैंस के साथ, मुझे ऐसा लग रहा है। बाप रे बाप। तो अगर कोई पूछना चाहे तो सर्टेनली हम लोग इस विषय पे भी बातचीत कर सकते हैं, आपकी जो इच्छा है वो भी बता सकते हैं। और शिवानी जी जैसे जो लोग हैं जो अपने प्यार को प्रदर्शित करना चाहते हैं चिन्मय के लिए, प्लीज ओपन, प्लीज कम एंड प्लीज टॉक। हॅलो सर. हॅलो हॅलो, नमस्कार सर. मला एक प्रश्न आहे की तुम्ही जेव्हा ऍक्टिंग करत होता, ते किरदार साकार करत होता, तेव्हा अशी कोणती वेळ आली की जेव्हा तुम्हाला खूप भावुक वाटलं, तुम्हाला असं मनातून असं वाटलंय की हे खरंच झालेलं आहे का, तुम्हाला परत तो सीन करावा लागला, किंवा असं काही तुमच्या याच्यामध्ये काही सर्टन मोमेंट्स आले होते का? नाही नाही नाही, असं काही नव्हतं झालं. फॉर एव्हरीबडीज अंडरस्टँडिंग, कॅन आय आन्सर दिस इन हिंदी, क्योंकि आई थिंक देर आर ऑल्सो, है ना, मराठी ना समझने वाले भी लोग होंगे, तो नहीं, ऐसा कोई वाकया नहीं है कि सीन दोबारा शूट करना पड़ा, लेकिन एक इंसिडेंट मैं जरूर बताऊंगा। हम जब शूटिंग कर रहे थे मसूरी में, देयर वाज दिस वन सीन, अगर आपको याद है, वो जो प्रेमी जी का जो सीन है, जहाँ उनके घर पे हम जाते हैं और उनको और उनके बेटे को हम लेके चले जाते हैं, और उसके बाद वो ट्रक वाला सीन आता है। तो वो जो जितने भी लोग, जितने भी महिलाएं खासकर आपको दिखती हैं उस सीन में, दे आर ऑल रियल कश्मीरीज एंड दे हैड कम फॉर द शूटिंग। मसूरी में वो लोग, अब उनको शायद विवेक जी ने कोऑर्डिनेट करके बुलाया था, तो वो सारे लोग आए थे। एंड व्हेन दे केम टू नो कि ये फिल्म शूट इस तरह से हो रही है और मैं उसमें बिट्टा का रोल कर रहा हूँ, तो उनके साथ बैठ के, क्योंकि रात को सीन शूट होने वाला था, वो लोग दोपहर को ही आ गए थे, हमारे लिए बहुत खाना वाना भी लेके आ गए थे, वो कश्मीरी खाना, तो वी हैड फूड एंड एवरीथिंग। और जब रात को हम बैठे थे शाम को उनके साथ, तो उन्होंने जो अपनी कहानियां सुनाई, जो आप बीती उनकी थी, वो बहुत दहलाने वाली थी। मतलब एक बात होती है कि आप रिसर्च करते हो, आप वीडियोस देखते हो, आप किताबें पढ़ते हो, आप अपने डायरेक्टर से बात करते हो, लेकिन जिन पे ये गुजरी है वो खुद जब अपनी जबान से बताते हैं, और वो उसको वो इतना एज मैटर ऑफ फैक्ट बता रहे थे कि जैसे हम बताएंगे ना कि कल मैं वहां गया था और मेरे साथ ये हो गया और बारिश हो गई, मैं छाता ले जाना भूल गया। वो उनके लिए इतना वो जज्ब हो गया था उनके अंदर कि they were just plainly narrating what had happened. Many of them who left their houses without even wearing chappals. So ये वो इंसिडेंट मैं कभी इस शूटिंग के दौरान, पूरी शूटिंग में ये एक इंसिडेंट कभी भूल नहीं पाऊंगा। That was a really emotional moment for all of us. I mean, उस दिन अनुपम जी भी सेट पे थे, मैं था, भाषा थी, we all were there, and it was a very emotional moment for us. Definitely. अश्विनी जी पूछना चाहती हैं। अश्विनी जी, आप अपने आप पूछिए, ज्यादा अच्छा लगेगा, मैं नहीं पढ़ूंगी आपका सवाल, आप पूछिए। अश्विनी जी, कैन यू हियर अस?
Yes, ma'am, I can hear you. Please, आप खुद पूछिए. No, मतलब मेरा क्वेश्चन नहीं था. I'm just saying that सर का आई एक्सप्रेशन मूवी में बहुत अच्छा लगा था मुझे, तो उसके लिए बस अप्रिशिएट कर रही थी मैं सर को. थैंक यू मैम, थैंक यू. सर, तो मेरा सवाल आई एक्सप्रेशन पर मुझे बता दीजिए कि कोई ऐसी एक्सरसाइजेस होती है क्या? इतना डरावना एक्सप्रेशंस कैसे? नहीं, आई डोंट नो मतलब we just picked it up. मैंने जितने भी वीडियोस देखे थे उसमें से ये मिला था स्लीपी आई का. तो मैंने एक बार वो विवेक जी को सिर्फ करके दिखाया कि ये ज्यादा तो नहीं हो जाएगा. तो उन्होंने कहा नहीं ये बहुत अच्छा लग रहा है, इसको रखो तुम, बट इसको कंटिन्यूअसली रखना, भूल मत जाना बीच में कहीं पे. लेकिन बाद में वो इतना आदतन हो गया था मेरे लिए कि अनुपम जी और पल्लवी जी काफी बार मजाक उड़ाते थे कि अब तो तू जिंदगी भर आंख मारता रहेगा लोगों को, ये तेरा लग जाएगा तुझे आदत. लेकिन थैंकफुली वो आदत नहीं लगी मुझे. आई मैनेज टू गेट आउट ऑफ इट वेरी सून. अब कैसे? एक्चुअली वो आपका बहुत अमेजिंग था. लाइक मैंने मूवी में फर्स्ट टाइम देखा तो बहुत अच्छा लगा था, इसलिए मैंने जो सभी बोल दिया. थैंक यू सो मच. We have 2 people in queue now. Sumit. जी, Sumit. Yeah, so my manager thinks you have some questions. Hello sir. Actually, I'm looking at this this film है, the one which is this guy who was in the in the drum. And then you tell me how to kind of film. Ma'am, I'm not able to hear you. Hello? You're not audible. Yeah. सर आपने वो जो फिल्म किया था जहाँ पे आपने वो कश्मीरी पर्सन को पिक किया और उसके बाद इसको वो शामिल बोला था ना, आई नो कैसे डरावना चीज आपको उसके बाद कुछ मेंटल ट्रॉमा समथिंग व्हाट हैपेंड टू यू आफ्टर डूइंग दैट. तो एज अ पर्सन इट्स वेरी डिफिकल्ट टू इवन सी दिस. आपने जो किया है, माफ कीजिए, आपको मैं एक बार या तो वापस पूछिए क्योंकि बिल्कुल मैं भी नहीं सुन पा रही हूँ. तो चिन्मय जी तो वैसे भी लो नेटवर्क में है, तो मेरे बहुत मुश्किल होगा. आ रही है अभी आवाज? हाँ जी. हाँ. ओके, सॉरी. मैं कह रही थी कि आपने वो जो फिल्म किया था जहाँ पे आपने शूट किया उस पर्सन को और उनकी वाइफ को, वो पागल खाने कहा, उसकी दैट फाइट इज वेरी डेंजरस. आपने इसको निभाया है एंड आफ्टर दैट डिड यू हैव सम मेंटल ट्रॉमा? डिड यू गो थ्रू a phase where you were completely shocked? I mean the entire movie was shocking, but that phase was something which nobody could have even thought of, right? Did you go such a pain or did you have sleepless nights after that? Something which happened with you? No, very honestly I didn't have a sleepless night, but I'll tell you why. The reason is I had read the scene many times. So वो जो आप देखकर जो एक्सपीरियंस करती हैं वो मैंने पहली बार जब पढ़ा था तो मुझे एक्सपीरियंस जरूर हुआ था कि अरे बाप रे ऐसा सीन करना है. बट व्हेन एज एन एक्टर यू एक्चुअली डू द सीन, यू आर मोर वरिड अबाउट डूइंग दैट सीन प्रॉपर्ली, क्योंकि तब तक वो आपके अंदर इतना घुस चुका होता है, आपके सिस्टम का एक पार्ट बन चुका होता है कि उसके बाद ये कहना कि नहीं आज मैं ठीक से सो नहीं पाऊंगा, वो मेरे ख्याल से हिपोक्रेसी है. ऐसा नहीं होता किसी भी एक्टर के साथ, होना नहीं चाहिए आइडियली. बिकॉज अगर मैं इतना उसके अंदर चला जाऊंगा तो मैं वो दिखा नहीं पाऊंगा आपको. बट यस, उसकी ग्रेविटी जरूर पता होती है. और ऐसे सीन्स जब आप करते हैं ना तो सेट का माहौल ही बदल जाता है पूरा. मतलब नॉर्मली जो एक सेट पे एक लाइट एटमॉस्फेयर होता है, हंसी मजाक चलता है, वो अपने आप मतलब किसी को बताना नहीं पड़ता, वो अपने आप खत्म हो जाता है. सो दैट वाज डेफिनेटली देयर. एंड इन द एंड व्हेन वी फिनिश्ड द एंटायर सीन वी जस्ट वर थिंकिंग कि हैव वी डन दिस राइट. जब ये पर्दे पर दिखेगा तब ऐसा तो नहीं लगेगा ना कि ये झूठ है. बस that was the only worry. But when we actually saw it on the screen, I was happy that we were able to achieve what we wanted to achieve. Yeah, because there was a complete numbness after the scene was done, So even when I saw it around, people were numb. And if you see in the film also, there is no background music to that scene. Yeah. It is like it is happening here right now with you. So when you see in the film you get more shocked, oh baap re ye kya ho gaya. But when we were doing it, our only worry was कि इसको ठीक से करना चाहिए. तो ये जो इम्पैक्ट आप तक पहुंच रहा है वो तभी पहुंच पाएगा. Thank you. Uma ji, we'll have to wind up. Just जी. Yes. जी,
देवाशीष पांचाल जी, आप अपने आवाज में सवाल पूछिए और वीडियो में आएंगे तब की अच्छी बात होगी। Okay, I hope I'm audible. Yeah. So Chinmay sir, we have been watching you as a Marathi audience on television for so many years. You've also done writing, you've also done theatre, and now through this film you're getting a very wide recognition globally as well as across the nation. So how has this journey been to you as an artist? Well, it has been a very, very fulfilling journey. When I started in my 20s, I graduated from the National School of Drama, और तब यही सोच के आए थे कि कभी किसी दिन बड़े पर्दे पर दिखेंगे, काम करेंगे। फिर उसके बाद आपके सामने जो काम आता जाता है वो आप करते जाते हो। और इसमें है ना, I would like to quote from गीता कि वो जो है ना कि कर्म कर और फल की अपेक्षा मत रख। ये जो बात है वो एक अभिनेता के लिए बहुत सही होती है कि आप काम करते रहो। You never know from where, how, what will come your way. मतलब the way Kashmir Files has come to me, I'm really shocked because I'm not a Kashmiri. In nowhere have I performed anything closely related to this character. But still, Pallavi Joshi ma'am felt that I will be able to deliver this. That for me was a blessing. और अब रिलीज होने के बाद भी जिस तरह का रिस्पॉन्स लोगों का है, again it was very unexpected. So we just did our jobs and the rest we you know sent it up to the universe, and universe has been very kind. I'm very happy about it. Thank you sir. Thank you so much. Thank you. देवाशीष जी, आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया। आई एम श्योर जितने भी लोग हैं और बहुत सारी बातें होंगी, सुनना चाहते होंगे स्वाति जी, लेकिन क्या करें, समय और घड़ी जो है बड़ी बेईमान होता है। एक आखिरी ले लेते हैं। जी जी, शर्वरी जी प्लीज पूछिए। हेलो सर। हाँ बोलिए। खूप मोठी फॅन आहे मी तुमची। I wanted to ask that what is your तुमचं ह्याच्यावर काय म्हणणं आहे की जो इतिहास हम बुक्स में पढ़ते हैं और जो इतिहास हम फिल्मों में देखते हैं, why it is not there in books, जो कश्मीर का इतिहास है या फिर जो छत्रपति शिवाजी महाराज का इतिहास है जो हम फिल्मों में देखते हैं, वो बुक्स में क्यों नहीं आता? इसका कुछ कारण हो सकता है, ऐसा कुछ आपका? आपने बहुत गहन और बहुत बड़ा सवाल पूछ लिया। देखिए, मतलब मैं इसको सिंप्लीफाई इस तरह से करूंगा कि आप सब कुछ एक ही किताब में आप सब कुछ नहीं पढ़ सकते शायद। ये जरूर है कि हमारा जो इतिहास का जो शिक्षण है खास तौर पे, वो थोड़ा अपडेट होना चाहिए। I firmly believe in that because we, I think somewhere are still following the British mindset. जो हमारी शिक्षण पद्धति जिस तरह से चल रही है, सुधार आ रहे हैं, धीरे धीरे आएंगे और बदलेगा। हमारा ये सारी, मतलब आई कैन स्पीक फॉर माई सेल्फ, ऐसी फिल्में करने का मोटिव ही ये है कि आप ये फिल्में जब देखते हैं तो फिल्म भी आपको पूरा इतिहास नहीं बताती, लेकिन इतिहास के बारे में क्यूरियोसिटी जरूर जनरेट कर सकती है। यू नो, अ पर्सन कैन वॉच अ फिल्म एंड देन थिंक कि मैं लाइब्रेरी में जाके कोई किताब पढ़ूंगा इसके ऊपर। और आजकल इंटरनेट की वजह से और जिस तरह की इंफॉर्मेशन हर जगह उपलब्ध है, उसकी वजह से कोई भी बात ढकी छुपी नहीं रह सकती बहुत देर तक, क्योंकि इतनी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। बस ये होना चाहिए कि उसमें से सही इंफॉर्मेशन क्या है, कौन सी है, और वो हिस्ट्री के तौर पे सामने आनी चाहिए। एंड आई थिंक कलेक्टिवली if the awareness comes in all of us, this will change, definitely it will change. Thank you sir, thank you so much. बहुत ही सटीक सा जवाब। You can take some questions. Palak ji has still not joined, so let's continue. Because there are so many hands. Many thoughts. So let's address them. जी, anyone who wants to ask a question? Sumit जी, Sumit, you raise the hand. Okay, he's not there. Sumit. Shavika, yes. Shavika. Yes ma'am. Hello sir. My question is कि जो इतनी आपको commercial success मिली है and like youth has connected with the film and इतना एक nationalistic movement बन गया है
जब आपने ये स्टोरी सुनी थी और व्हेन यू वर वर्किंग ऑन द फिल्म, डिड यू एक्सपेक्ट दिस? एंड ऑल्सो क्या आपको लगता है कि आजकल ये जो कंटेंट मूवीज है और जो स्टोरीज ऑनेस्टी के साथ बोली जाती है, दैट्स व्हाट इज कनेक्टिंग द ऑडियंस? एक्सपेक्टेशन ये जरूर थी कि लोग इससे कनेक्ट करेंगे, इतनी भारी मात्रा में और इतनी भारी तादाद में कनेक्ट करेंगे ये नहीं सोचा था, और इतनी जल्दी कनेक्ट करेंगे। जैसे मैंने पहले भी कहा, मुझे लगा था कि शायद दूसरे तीसरे वीक से लोग जुड़ना शुरू हो जाएंगे फिल्म के साथ, एंड नाउ दैट इट हैज ऑलमोस्ट टर्न्ड इनटू अ मूवमेंट, आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट, एंड आई एम हैप्पी फॉर इट्स कमर्शियल सक्सेस ऑल्सो, बिकॉज पिछले 2 साल कोविड में हमने बिताए, फिल्म इंडस्ट्री को बहुत बड़ा नुकसान उसका झेलना पड़ा है, काफी लेवल्स पे झेलना पड़ा है, और इसीलिए सारी ऑडियंसेस को वापस खींच के थिएटर्स तक लाना ये बहुत बड़ी बात है, जो कि द कश्मीर फाइल्स जैसी फिल्म में कर रही है। मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ द कश्मीर फाइल्स कर रही, बट इट हैज बीन वेरी इंस्ट्रूमेंटल एंड इट हैज बीन अमंग द मोस्ट प्रोमिनेंट फिल्म्स टू डू दैट। So yes, I mean that is my answer to this. Expectations was not there, but now that it has become true, I'm very happy about it. चिन्मय जी, मैं पूछना चाहती हूँ एक चीज कि जी, जब मैंने पीएचडी की तो मेरी जो गुरु थी, गाइड थी, वो टिक्कू थी, कश्मीरी पंडित थी। ओके। अब हो गए हैं उस बात को भी 15 साल के करीबन। तो उनसे जब भी बात होती थी तो कहती थी कश्मीरी पंडित आ गए हैं और कोई उन्हें जानता नहीं है। तो ये भी एक उनके अंदर बहुत डर था, क्या हमारे साथ हुआ है, पता है सबको, मतलब मैं भी तब अराउंड 25-30 इयर्स में, पर कुछ किसी को भी नहीं पता। शायद एक दिन हम जब जाएंगे तब सबको पता लगेगा कि हुआ क्या, मतलब जब घर जाएंगे तब पता लगेगा। मतलब वो एक दर्द और वो एहसास, मतलब जब गुरु बोलता था तो समझ में आता था कि हाँ कहीं तो दर्द है। आज आपको लगता है कि ये घर वापस जाने का दौर स्टार्ट करने में इसका काफी रोल रहेगा इस मूवी का, और जो एक चेंज ला रही है सोसाइटी में सच में? I expect so. मेरे ख्याल से abrogation of Article 370 and 35A was the first move, and that should have happened long back, because उसके बाद भी मुझे नहीं लगता कि instant कुछ होगा, मतलब रातों रात नहीं बदलेगा, कुछ साल लगेंगे। बट हम ये कहते हैं ना कि बड़े बड़े जो सफर होते हैं उनकी शुरुआत पहले कदम से ही होती है। सो आई थिंक दिस इज द फर्स्ट स्टेप, एंड इफ द फिल्म, मतलब ये तो आने वाला समय बताएगा, if the film is anywhere instrumental in bringing the Kashmiri Hindus back into the valley and bringing peace to valley, I think we have more than done our job. और कोई सवाल पूछना चाहे प्लीज? और कोई सवाल हो तो पूछिए, बिल्कुल। चलिए, मेरे ख्याल से अब हमें यहाँ रुकना चाहिए। जी जी जी, चलिए मैं हाँ जी स्वाति जी, अब इस सदन का वो समय आ गया है जो बोलने में मुझे अच्छा नहीं लगता है, लेकिन बोलना पड़ता है। चिन्मय जी, आपके आने का, और अतुल जी अभी फिलहाल काम के लिए ये भी कुछ बोलना चाह रहे हैं। जी जी नहीं, मैं पूछना नहीं चाह रहा था। मैंने तो ये मराठी सीरीज बहुत देखता हूँ मैं, तो इनके बहुत सारी मराठी सीरीज देखी है, बहुत सारी मराठी फिल्में भी देखी है, लेकिन एक ग्रोथ जो आपकी एक्टिंग में हुई है वो स्लो एंड स्टडी हुई है। मतलब ऐसा नहीं कि पहले पिक्चरों में ही आप उतने मतलब एक्सप्रेसिव और पूरा, लेकिन इस पिक्चर में जो आपने आत्मसात रोल किया है, that shows really the growth, and it is very difficult to maintain this level of acting. So what would like to say about that? How would you maintain this level of acting? Sir, bus keeping your head on your shoulders, that is all you have to do. No, that will be very difficult now actually. No sir, if your roots are grounded, then फिर चाहे पेड़ कितना भी ऊपर चला जाए वो गिर नहीं सकता. My roots are pretty much grounded. मेरे ख्याल से सारे दिमाग में हवा नहीं जाने देंगे। मेरे ख्याल से सारे स्टूडेंट्स के लिए ये जो सेंटेंस जो चिन्मय सर ने बोला है वो याद रखना। सफलताएं तो मिलेंगी, धीरे धीरे आप आगे बढ़ेंगे, लेकिन इफ यू कीप योर हेड अबव योर शोल्डर यू विल नेवर फेल एंड यू विल कंटिन्यू टू ग्रो। मेरे ख्याल से
ये जो सेशन हम सभी अपने स्टूडेंट्स के लिए रखते हैं, अभी 200-250 के लगभग स्टूडेंट्स इसमें जुड़े हुए हैं, सभी के लिए एक बहुत बड़ा लेसन है। आपके लोगों का संघर्ष का काल अभी शुरू होने वाला है, कॉलेज से बाहर निकलेंगे, लेकिन धीरे धीरे मेहनत करते जाएंगे, एक बॉडी ऑफ वर्क क्रिएट करते जाएंगे, तो निश्चित सफलता जो है वो तो कर्म किए जा फल की चिंता मत कर, ऐसा चिन्मय जी पहले ही बोल चुके हैं एक अभिनेता के लिए, लेकिन मुझे लगता है कि सबके लिए ये सत्य है। जी जी। और वैसे भी सतीश जी, ये आने वाली जनरेशन अब लोगों के सामने काम करके दिखाने वाली है, और मुझे लगता है कि इसमें बहुत ज्यादा जज्बा है, वो हिम्मत है, इतिहास को नए रूप में लोगों के सामने लाया जा रहा है। आई एम श्योर ये अब वर्तमान और भविष्य चेंज कर देगी, ऐसा मुझे लगता है। तो इसी बात के साथ मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहूंगी। चिन्मय जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय दिया। थैंक यू सो मच। धन्यवाद स्वाति जी, आप आज धन्यवाद। आपने बहुत ही अच्छे से कंडक्ट किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। Really, you are a great actor, sir. You are really great actor. Thank you so much. Thank you. Bye. धन्यवाद। Bye. Thank you. Bye. Students, since Palak ji is traveling and her